I am Rani Dubey, your EVS teacher. Today we are going to chapter 3, remaining part 2nd. So open your book, page number 30. Let's start. Story: a stomach with a window. In the poem, you read about a soldier called Martin in 1822. He was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin, like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on this stomach? On doing different experiment on this stomach 9 years. During this time, Martin grew up and got married. तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वाशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। At that time, scientists did not know how food was digested. How does the liquid digestive juices in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस, जो रस बनते हैं, रस होते हैं पेट में, उनका क्या काम होता है। क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। डॉक्टर बोमोंट took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. Would it get digestive on its own? For this he did an experiment. With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. At
8:30 a.m. he put 20 tinner pieces of boiled fish in 10 milliliter of the juice. He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 degrees centigrade. When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish had dissolved. इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में से एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। डॉक्टर बोमोंट tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for good to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observations in a table. फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी। Here is a part of his observation table. इस सेकंड पेज नंबर पे आना आपको, नेक्स्ट पेज। उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमोट की तालिका देखें, इसमें दिया हुआ है नंबर फूड आइटम, टाइम टेकन फॉर डाइजेशन और नंबर फर्स्ट अनबॉइल्ड मिल्क, और टाइम दिया है इन द स्टोमक। तो स्टोमक में 2 आवर्स 15 मिनट्स इतना लगा उसको पचने में, ये पचने का टाइम दिया हुआ है। ये क्या है में स्टोमक में, यानी पेट में कब पचा। और इन द ग्लास विथ डाइजेस्टिव जूस, वो जो जूस निकाला था तो उस ग्लास में, उसमें कितना टाइम लगा 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स। सेकेंड बॉइल्ड मिल्क 2 आवर्स एंड ग्लास में 4 आवर्स 15 मिनट्स। नंबर थर्ड फुल बॉइल्ड एग 3 आवर्स 30 मिनट्स एंड इन द ग्लास 8 आवर्स। नंबर 4 हाफ बॉइल्ड एग 3 आवर्स एंड इन द ग्लास 6 आवर्स 30 मिनट्स। इसी तरह रॉ एग बीटेन 2 आवर्स इन द स्टोमक एंड इन द ग्लास 4 आवर्स 15 मिनट्स। नंबर 6 रॉ एग 1 आवर 30 मिनट्स एंड इन द ग्लास 4 आवर्स। इस तरह से बताया है। सो व्हाट डज आवर स्टोमक डू। तो खाने की चीज़ें क्या हैं, कच्चा दूध, उबला दूध और पूरी तरह उबला अंडा। नंबर 4 कम उबला अंडा, 5वां कच्चा अंडा फेंटा हुआ और 6वां कच्चा अंडा। अब पेट में कब कितना टाइम लगा, ये अलग अलग टाइम दिया हुआ है। कच्चा दूध पचने में टाइम लगा पेट में 2 घंटे 15 मिनट, जबकि गिलास में जो पाचक रस थे उसमें लगता है 4 घंटे और 45 मिनट 45 मिनट। इसी तरह उबला हुआ दूध पेट में 2 घंटे में पचा और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में। इसी तरह से पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचा और गिलास में जो जूसेस थे उसमें 8 घंटे लगे। इसी तरह से जो कम उबला अंडा था 3 घंटे में पचा पेट में और गिलास में 6 घंटे 30 मिनट में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे पेट में पचा, 2 घंटे लगे पचने में पेट में और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट लगे। इसी तरह से कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचा और गिलास में 4 घंटे। तो जैसा कि तालिका में हमें नज़र आ रहा है कि पेट में जो था वो जल्दी पच रहा है इन द स्टोमक, लेकिन जो गिलास में जो जूसेस निकाले हुए हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो डॉक्टर बोमोट ने मार्टिन की खिड़की इधर पढ़ना, हाँ जी पैरा पढ़ना है। डॉक्टर बोमोट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स and found out many secret
about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? जैसा कि मैं अभी समझाया आपको कि डॉक्टर बोमेंट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है और गिलास में जो जूसेस निकाले हुए हैं बाहर जो है वो देर से पचता है। क्या तुम भी ये देख पाए? Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. He also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। चर्न करना नहीं, घुमाना, जैसे कि अपन चलाते हैं ना, जैसे दही को बनाने के लिए आरी चलाते हैं, उस पर क्या बोलते हैं, घुमाते हैं, फिरनी। तो इस तरह से जो पेट में जो खाना हमारा पचता है वो खूब घुमा कर और हिला करके पचता है। भी यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस यानी कि एसिड जो अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? Dr. Beaumont's experiments became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टोमक? थिंक एंड डिस्कस। सोचो और डिस्कस करो, चर्चा करो। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बोमोंट, what experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. अगर डॉक्टर बोमोंट की जगह तुम होते तो पेट की रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। टर्न द पेज। Dr. Aparna has two patients, Rashmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए दो बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी है, तुम भी पढ़ो। रश्मि 5 years and कैलाश 7 years। पहले हम रश्मि के लिए पढ़ते हैं। ये दो बच्चे हैं, रश्मि और कैलाश, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रश्मि कैसी है? 5 साल की है। She looks about 3 years old. She has very thin arms and legs
and a pot belly, stomach like a balloon. She often falls sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. Food. She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. तो रश्मि कैसी है? देखने में 3 साल की लगती है और है कितने साल की? 5 साल की। हाथ पैर कैसे हैं उसके? पतले पतले हैं और पेट फूला हुआ है। अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खेलने की ताकत भी नहीं होती। और खाना कितना खाती है? पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी, वो भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। अब कैलाश को देखते हैं। कैलाश 7 years. He looks older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his legs. He is not very active. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. Food. He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables and roti. The only thing he finds tasty are chips, burger, pizza and soft drinks from the market. कैलाश का क्या हाल है? वो 7 साल का है, लेकिन वो उम्र से बड़ा लगता है। शरीर मोटा है और थुलथुला है। पैरों में उसके दर्द रहता है। फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाता है और दिन में कई घंटे टीवी देखता है। और खाने में क्या खाता है? घर का बना खाना उसको पसंद नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाज़ार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, बस यही भाता है उसको। डॉक्टर अपर्णा measured the height and weight of both the children. Then she told them, there is only one treatment for both your problems, proper food. डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है। क्या इलाज है वो? सही खाना। डिस्कस यानी चर्चा करो। Why do you think Rasmi could eat only one roti in the whole day? Do you think Kailash would like games and sports? What do you understand by proper food? Why do you think that the food of Rasmi and Kailash was not proper? तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? क्या कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी होगी? सही खाने से तुम क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो फाइंड आउट यानी कि पता करो। टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे at what work they did when they were of your age. Now think about yourself, your daily activities and daily diet. Are these similar or different from what your grandparents did and ate? दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना। अब तुम अपना सोचो, जो तुम खाते हो और जो काम करते हो, क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें, बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक। यू हैव रीड अबाउट 2 children. One is Kailash who does not like homemade food. The other one is Rashmi who does not like homemade food. The other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly, often ill, in poor health, but it is the right of every child to get proper food.
एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं। उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। टर्न द पेज। Read about this story in कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड who does not get enough to eat in the whole day? What are the reasons for this? Have you ever seen a godown where a lot of grain has been stored? Where? क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? कहाँ? अब ये कालाहांडी की जो लेडी है उसके बारे में पढ़ते हैं। गोमती। गोमती इज़ 30 years old. Gomti works in the fields of a rich farmer. For all her hard work, she gets paid very little, so little that she cannot even buy enough rice to feed her family. Some months she does not get any work at all. Then she has to eat leaves and roots from the jungle. Gomti's children are weak with hunger and always sick. Few years ago, her husband died of hunger. 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। Most rice grows in Kalahandi district. Rice is even sent to other states from here. Many times the rice that keeps lying in the godowns get spoiled. In the same Kalahandi, there are many poor people like Gomti. Why do people die of hunger in such a place? एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? What we have learned. हम क्या समझे? Why can you not taste food proper when you have a cold? If we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this? Right. जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे? लिखो। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है। ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। इसके आंसर हम नेक्स्ट टाइम लिखवाएंगे आपको। सो आप उस चैप्टर को बार बार पढ़ना है और समझना है। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू।